Hello students, myself Dr. Vinita Rathod, Associate Professor of Zoology at SMB Government PG College, Nathdwara. Today in this video, we will study about general characteristics of phylum Echinodermata. The word Echinodermata is derived from two Greek words in which the first word is echinos and the second word is derma. Echinos means hedgehog and the derma means skin. Echinoderms are one of the most beautiful and most familiar sea creatures. Sea stars have become a symbol of sea life. There are 7,000 species known in this phylum. Name of this phylum was introduced by Kleene in 1734 for sea urchins. Echinodermata were first recognized as a group distinct from Radiata by Leuckart in the year 1847. For many years, echinoderms and coelentrates were included as a class among Radiata because both of them were radially symmetrical. If we define echinoderms, we can define them as exclusively marine and largely bottom dwellers, enterocoelous, coelomate, triploblastic animals which have pentamerous radial symmetry derived from original bilateral symmetry. Calcareous plates or spicules are embedded in their skin which forms their endoskeleton, and due to presence of these spicules and calcareous plates, their skin looks rough in surface and therefore they are given the name echinoderms or echinodermata. They are provided with a peculiar water vascular system of coelomic origin, and numerous podia which are called as tube feet are present in these animals. इकाइनोडर्मेटा शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें प्रथम शब्द इकिनोस है जिसका अर्थ होता है कांटेदार और दूसरा शब्द डर्मा है जिसका अर्थ होता है त्वचा। ग्रीक भाषा में इस शब्द का शाब्दिक अर्थ कंटकित या कंटीली त्वचाधारी होता है, और क्योंकि इनकी त्वचा बाहर से कांटों युक्त दिखाई देती है, इसीलिए इन जीवों को इकाइनोडर्मेटा नाम दिया गया है। इकाइनोडर्म प्राणी समुद्रवासी अत्यंत सुंदर एवं जाने पहचाने जंतुओं में से एक है। सागर तारों जैसे रूप समुद्री जीवन के प्रतीक बन गए हैं। सन 1734 में क्लीन नामक व्यक्ति द्वारा सी अर्चिन्स के लिए इस संघ का नामकरण किया गया था। अनेक वर्षों तक इकाइनोडर्म और सीलेंट्रेट प्राणियों का उनके वयस्कों में अरिसममिति होने के कारण रेडिएटा के अंतर्गत वर्ग की भांति रखा गया था। सन 1847 में ल्यूकार्ट ने इन्हें सर्वप्रथम रेडिएटा से पृथक कर पृथक समूह में मान्यता दी। इकाइनोडर्मेटा को अगर हमें परिभाषित करना हो तो हम इन्हें इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। इकाइनोडर्म नितांत रूप से समुद्रवासी और अधिकतर तलीवासी आंत्रगुहिक प्रगुही त्रिजनन स्तरीय प्राणी होते हैं। इनके शरीर में द्विपार्श्व सममिति से व्युत्पन्न 5 खंडीय अरीय सममिति उपस्थित होती है। इनके शरीर में त्वचा में धंसे हुए कैल्केरियाई प्लेटों और कंटिकाओं का बना हुआ अंतःकंकाल होता है। प्रगुही उत्पन्न एक विशिष्ट जल संवहन तंत्र तथा असंख्य पादप या नालपाद इनमें उपस्थित होते हैं। Habitat of Echinodermata. All existing echinoderms are marine inhabitat. They are exclusively found only in sea water. They are generally present in the sea bottom,
Some of them are pelagic forms, or you can say free swimming forms, which can be found in open water, and few are sessile. It means they cannot move, they complete their life cycle with attached to the substratum. Body form. Body form of echinoderms varies considerably. The body is star-shaped. It may be spherical, discoidal, or cylindrical in shape. Their body is unsegmented. Head is absent in echinoderms. The body surface is marked by 5 symmetrically radiating areas, which are called as ambulacra, and 5 alternative interradii, which are called as interambulacra. Spines and pedicellariae. Many echinoderms bear spines and pincer-like pedicellariae. The spines are protective in function, and the pedicellariae keep the body surface clean from debris and minute organisms. इकाइनोडर्मेटा के जंतु नितांत समुद्रवासी होते हैं। सामान्यतया ये समुद्र की तह में पाए जाते हैं, किंतु कुछ स्वतंत्र रूप से प्लवन करने वाले और गमन करने वाले, तैरने वाले पेलाजिक प्राणी होते हैं, और इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो स्थानबद्ध होते हैं, अर्थात गमन नहीं कर सकते हैं और अपना पूरा जीवन किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होकर के व्यतीत करते हैं। बॉडी फॉर्म। इन जंतुओं का शरीर का जो आकार है उसमें बहुत सारी भिन्नताएं पाई जाती हैं। ये ताराकृति वाले भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, डिस्क के समान भी हो सकते हैं और बेलनाकार आकृति के भी हो सकते हैं। सामान्यतया ये जंतु ऐसे हैं जो कि अनसेगमेंटेड, अविखंडित शरीर वाले जंतु हैं तथा इनमें सिर का अभाव होता है। इनकी बॉडी सरफेस पर 5 अरीय सममित की भुजाएं या स्थान होते हैं, 5 शाखाएं निकली रहती हैं जिन्हें हम एम्बुलेक्रा कहते हैं, और इन 5 एम्बुलेक्रा के मध्य में जो स्थान होता है उसे ऑल्टरनेटिंग इंटररेडिया या इंटर एम्बुलेक्रा कहा जाता है। स्पाइन्स एवं पेडिसिलेरिया। ज्यादातर इकाइनोडर्मेटा के जीवों में त्वचा पर स्पाइन्स पाए जाते हैं तथा फॉर्सेप के समान पेडिसिलेरिया पाए जाते हैं। इन कंटिकाओं द्वारा इन जंतुओं को प्रोटेक्शन मिलता है, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होती हैं ये, और पेडिसिलेरिया की मदद से इनकी त्वचा पर आए मिट्टी के कण और छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो इनकी त्वचा पर गिर जाते हैं उन्हें साफ करने का काम किया जाता है। सिमेट्री। The echinoderms are bilaterally symmetrical in their larval stages, but they show pentamerous radial symmetry in adults. Body parts are arranged in 5 or multiples of 5. सम्मिति। इकाइनोडर्मेटा के जंतुओं में लार्वा अवस्था में द्विपार्श्व सम्मिति उपस्थित होती है, किंतु जो इसके वयस्क होते हैं उनमें पंचअरीय सम्मिति पाई जाती है। इनका शरीर 5 और 5 के गुणांक में व्यवस्थित होता है। बॉडी वॉल। Epidermis is single layered and it is ciliated. In many echinoderms, there is endoskeleton of calcareous plates in the dermis which are mesodermal in origin. देहभित्ति। इनकी देहभित्ति एपिडर्मिस की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है, जिनकी एक परत होती है, और ये एपिडर्मल कोशिकाएं सीलिएटेड होती हैं, यानी कि सीलिया युक्त होती हैं। अधिकतर इकाइनोडर्मेटा के जीवों में अंतःकंकाल के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई प्लेट्स जो कि त्वचा में धंसी रहती हैं उपस्थित होती हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेट्स, इनका जो उद्भव है वो भ्रूणीय मेसोडर्म के द्वारा होता है। बॉडी कैविटी। A true enterocoelous coelom which constitute perivisceral cavity
and cavity of water vascular system. Coelomic fluid with coelomocytes. प्रगुहा, इनमें आंत्रगुही प्रकार की प्रगुहा पाई जाती है, जिसमें परिअंतरंग गुहिका एवं जल संवहन तंत्र की गुहिका सम्मिलित होती हैं। प्रगुही कोशिकाओं सहित प्रगुही द्रव्य भी प्रगुहा में उपस्थित होता है। Ambulacral system, which is also called as water vascular system. Presence of ambulacral system is the characteristic feature of phylum Echinodermata. A perforated plate, which is called as a madreporite, is present in this system. The pores of madreporite allow water into the system. Tufit of this system helps in the locomotion, capture of food, and respiration. The water vascular system is of coelomic origin. Echinodermata के जंतुओं में जल संवहन तंत्र एक विशिष्ट लक्षण के तौर पर उपस्थित होता है। इनके जल संवहन तंत्र में एक छन्नी के समान मैड्रीपोराइट उपस्थित होता है, जिसे प्ररंध्रक कहा जाता है। ये प्ररंध्रक के द्वारा शरीर में जल प्रविष्ट होता है और इसी के द्वारा भोजन की भी इस जंतु को प्राप्ति होती है। इसमें ट्यूफिट जो प्रेजेंट होते हैं जल संवहन तंत्र के साथ ही, उन ट्यूफिट के द्वारा या नालपाद के द्वारा ये जंतु गमन की प्रक्रिया भी करते हैं, भोजन को पकड़ने का कार्य भी करते हैं तथा यही ट्यूफिट या जलपाद नालपाद श्वसन हेतु भी प्रयुक्त किए जाते हैं। इनका वाटर वैस्कुलर सिस्टम या जल संवहन तंत्र सीलोमिक ओरिजिन का होता है, अर्थात प्रगुही तंत्र के रूप में ये उपस्थित होता है। Digestive tract. In echinoderms, usually the digestive system is having a complete alimentary canal which starts from mouth and ends with the anus. The alimentary canal may be straight or it may be coiled. Brittle stars have incomplete digestive tract amongst echinoderms, which is an exceptional case. Hemal and perihemal system. Instead of blood vascular system, there are present hemal and perihemal systems which are of coelomic origin. Thus, the so-called circulatory system is open type and includes hemal and perihemal systems. Their blood is often without a respiratory pigment. There is no heart. पाचन तंत्र। इकाइनोडर्मेटा के जंतुओं में आहार नाल पूर्ण होती है, जो मुख से प्रारंभ होती है और गुदा छिद्र पर आकर समाप्त होती है। आहार नाल सीधी अथवा कुंडलित हो सकती है। ब्रिटल स्टार एक अपवाद है जिनके अंदर अपूर्ण डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या आहार नाल उपस्थित होती है। हीमल एंड पेरीहीमल सिस्टम। रुधिर संवहन तंत्र के स्थान पर इकाइनोडर्मेटा के जीवों में हीमल और पेरीहीमल सिस्टम उपस्थित होता है। यह सिस्टम भी सीलोम के द्वारा ही उत्पन्न होता है। संवहन तंत्र एवं रुधिर तंत्र प्रगुही परिरुधिर वाहिकाओं से बंद रहता है। यह जो परिवहन तंत्र है, इसमें ब्लड रंगहीन होता है और इनके शरीर में हृदय भी अनुपस्थित होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। Gaseous exchange occurs by dermal branchiae or papillae in starfishes, peristominal gills in sea urchins, genital bruci in brittle stars, and respiratory tree in holothurians are present. Exchange of gases also takes place through tube feet. श्वसनांगों में चर्मीय क्लोम, नालपाद, श्वसन वृक्ष एवं प्रपुटियां सम्मिलित होती हैं,
जिनके द्वारा श्वसन की प्रक्रिया संपादित की जाती है। अर्थात अनेक प्रकार के श्वसन अंग अलग अलग जीवों में देखने को मिलते हैं। Excretory organs. Excretory organs here are almost absent. No special excretory organs are present in echinoderms. The nitrogenous waste are diffused out via gills, and the ammonia is the chief excretory matter relieved from their body. उत्सर्जी अंगों का अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनमें विशेष प्रकार के उत्सर्जी अंगों का अभाव होता है। नाइट्रोजन युक्त जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उनका शरीर से बाहर निष्कासन गिल्स के द्वारा किया जाता है। मुख्य रूप से अमोनिया यहाँ पर उत्सर्जी पदार्थ के रूप में निष्कासित की जाती है। नर्वस सिस्टम. Nervous system consists of a circumoral nerve ring and radial nerves. Brain is absent in these animals. तंत्रिका तंत्र. इकाइनोडर्मेटा के जीवों में तंत्रिका तंत्र में मुख के चारों ओर उपस्थित एक तंत्रिका वलय और रेडियल नर्व्स उपस्थित होती हैं। इन जंतुओं में मस्तिष्क का अभाव होता है। Sense organs. Echinoderms have poorly developed sense organs. They include tactile organs, chemoreceptors, terminal tentacles, photoreceptors, and statocyst as a balancing organ, but all these sense organs are poorly developed in echinoderms. संवेदी अंग. इकाइनोडर्मेटा के जंतुओं में संवेदी अंग अल्प विकसित होते हैं। इनमें मुख्य रूप से स्पर्शग्राही, कीमोरिसेप्टर्स और टर्मिनल टेंटिकल्स, प्रकाशग्राही और संतुलन पुट्टियां होती हैं, किंतु ये सब अल्प विकसित प्रकार की होती हैं। Sexes and fertilization. Except a few individuals, sexes are separate in echinoderms. Male and female individuals are separate, but there is no sexual dimorphism. Gonads are large and single or multiple. Fertilization usually takes place outside the body of female, or we can say that external fertilization is found among echinoderms. लिंग एवं निषेचन. कुछ जीवों को छोड़ करके सामान्यतया ज्यादातर इकाइनोडर्मेटा के जीवों में लिंग पृथक पृथक होते हैं, अर्थात नर और मादा जंतु अलग अलग होते हैं, किंतु इनमें लैंगिक द्विरूपता देखने को नहीं मिलती है। हम इन्हें बाहरी आकार के आधार पर लिंग विभेदन नहीं कर सकते हैं। जनन इसमें बड़े होते हैं जिनकी संख्या एक या एकाधिक हो सकती है। निषेचन की प्रक्रिया सामान्यतया शरीर के बाहर पूर्ण की जाती है। Asexual reproduction. Some of the forms of echinoderms reproduce themselves asexually by self-division. कुछ इकाइनोडर्मेटा की प्रजातियों के अंदर अलैंगिक प्रजनन देखने को मिलता है और ये अलैंगिक प्रजनन द्वारा भी विभाजित होती हैं। Autotomy and regeneration. Phenomena of autotomy and regeneration are often well marked in echinoderms. स्वविच्छेदन एवं पुनरुद्भवन. इकाइनोडर्मेटा के जंतुओं में स्वविच्छेदन और पुनरुद्भवन की अद्भुत क्षमता होती है। जब इकाइनोडर्मेटा के जीव की यदि कोई भुजा किसी शत्रु के चुंगल में फंस जाती है तो ये अपने शरीर का स्वेच्छा से विच्छेदन कर देते हैं और स्वयं को सुरक्षित कर लेते हैं। फिर जो स्वयं की इच्छा से स्वविच्छेदन के द्वारा शरीर का जो भाग टूट करके अलग हुआ था उसे पुनरुद्भवन द्वारा पुनः निर्मित कर लिया जाता है। Development. The development is indirect in echinoderms and it includes a ciliated
bilaterally symmetrical larva that undergoes metamorphosis to change into radially symmetrical adult. Different larval forms are found in different classes of Echinodermata. विकास इकाइनोडर्मेटा के जंतुओं में सामान्यतया विकास की प्रक्रिया अप्रत्यक्ष रूप से होती है। इस अप्रत्यक्ष विकास में इनके अंदर सीलिया युक्त द्विपार्श्व सममित लार्वल अवस्था पाई जाती है, जो मेटामॉर्फोसिस के पश्चात रेडियल सिमेट्री युक्त एडल्ट एनिमल में परिवर्तित हो जाते हैं। इस संघ की विभिन्न वर्गों में अलग अलग प्रकार के लार्वा उपस्थित होते हैं। Unique features. Echinoderms have some unique features, in which the most important is the presence of spines and pedicellariae on their skin, due to which their skin looks rough in surface and they are given the name echinoderms. Then presence of ambulacral system or water vascular system. This water vascular system performs many functions and it is a unique feature of echinoderms. Presence of hemal system, mesodermal endoskeleton of calcareous plates, and bilateral symmetry which is present in the larva is converted into radial symmetry in the adults during the process of metamorphosis. So all these are very peculiar and unique features of echinoderms. Echinodermata के जीवों के विशिष्ट लक्षण। पहला, इन जीवों में कंटिकाएं और पेडिसिलेरिया उपस्थित होते हैं। इन कंटिकाओं और पेडिसिलेरिया की उपस्थिति के कारण इनकी त्वचा रफ दिखाई देती है या खुरदरी दिखाई देती है और इसी के कारण से इनका नाम इकाइनोडर्मेटा पड़ा। इन जीवों में एक विशिष्ट प्रकार का तंत्र पाया जाता है जिसे जल संवहन तंत्र कहा जाता है। जल संवहन तंत्र के अतिरिक्त इनमें हीमल सिस्टम और मीजोडर्मल एंडोस्केलेटन या अंतःकंकाल जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई प्लेट्स के द्वारा निर्मित होता है। एक और मुख्य बात इनमें ये पाई जाती है कि जो इनका लार्वा होता है वो लार्वा अवस्था में द्विपार्श्व सममित होता है, लेकिन जब विकास के क्रम में ये मेटामॉर्फोसिस पूरा करता है और एडल्ट में परिवर्तित होता है तब तक इसकी द्विपार्श्व सममिति समाप्त होकर के रेडियल सिमेट्री या अरे सममिति में परिवर्तित हो जाती है। Degenerated characters. Echinoderms have some of the characters which are degenerated in them, in which first is the lack of head. Simple type of sense organs are present in these animals. They have incomplete digestive tract in some of the forms and reduced circulatory system and absence of excretory system. So all these characteristics are degenerated as compared to the earlier individuals of invertebrate phylums. Echinodermata के जीवों में कुछ गुण समाप्ति की ओर देखे जाते हैं, जिसमें पहला है सिर का अभाव होना, संवेदन सरल प्रकार के होना। इनके कुछ जीवों में डाइजेस्टिव सिस्टम या आहार नाल अपूर्ण होती है और इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम या परिवहन तंत्र है, रुधिर परिवहन तंत्र, वो बहुत निम्न प्रकार का होता है। इन जंतुओं में उत्सर्जी तंत्र का भी अभाव होता है। Resemblance of echinoderms with chordates. Echinoderms show some of the characteristics which resembles with the chordates. These are as follows. The first is radial and indeterminate cleavage, gastrulation by invagination. The mouth in both the groups is derived from an ectodermal invagination.
Adult anus is derived from embryonic blastopore in both the groups. Their endoskeleton is derived from mesodermal cells, and both these group of animals are having anterocoelous coelom. An anterocoelous coelom is the coelom which is formed by outpouching of a mesodermal sac from the endoderm. Both of these groups of animals are deuterostomes. From these resemblances, it is clearly proved that echinoderms are nearer to chordates than any other group. It also indicates that chordates have been evolved from echinoderm-like ancestors. इकाइनोडर्मेटा के जंतुओं की कशेरुकी प्राणियों से समानताएं। इकाइनोडर्मेटा के जंतु कशेरुकी प्राणियों से कई समानताएं रखते हैं, जिनमें मुख्य रूप से अरीय और इनडिटर्मिनेट विपाटन दोनों में पाया जाता है। इनमें गैस्ट्रुला भवन की प्रक्रिया अंतर्वलन द्वारा पूर्ण की जाती है। दोनों ही समूहों में मुख का विकास एक्टोडर्म के अंतर्वलन के द्वारा होता है। दोनों ही ग्रुप के एनिमल्स में एडल्ट्स में जो एनस है, इसका विकास भ्रूणीय ब्लास्टोपोर के द्वारा किया जाता है। इनका अंतःकंकाल मेसोडर्म की कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होता है। दोनों में ही आंत्रगुहिक प्रगुहा उपस्थित होती है और दोनों ही ड्यूटेरोस्टोम हैं। इन सभी समानताओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इकाइनोडर्मेटा के जंतु कशेरुकी प्राणियों के काफी नजदीक हैं। ये यह भी इंगित करता है कि कॉर्डेट्स या कशेरुकी के प्राणियों का विकास किन्हीं इकाइनोडर्मेटा के समान पूर्वजों के द्वारा हुआ होगा। With this we complete the characteristics of phylum Echinodermata. In the next video, we will discuss about classification of phylum Echinodermata.